लेट्स बी रियल, हमारे बोर्ड एग्जाम्स अब सिर्फ 3 months बाद है. एंड इफ यू आर स्टिल वेटिंग टू गेट सीरियस, then now is literally the time, because 3 months is not a lot. And considering इस 3 months में हमको 2 pre-board exams भी देने हैं, we do not have a lot of time to prepare for our board exams. And considering I have studied consistently पूरे साल, I'm still panicking. But in today's video, I will share the ultimate 3-month strategy which you all can use to study for your board exams, and that same strategy I will also be using to study for my board exams. So without wasting any more time, let's get right into the video. And do subscribe to my channel if you haven't already, and follow me on Instagram. My ID is right here. I upload exclusive content over there. Okay, so now let us start. सबसे पहले जो मैंने चीज करी है कल बैठ के is I have made these लिस्ट्स. अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ लाइक कैमरा फ्लिप करके. बट ये जो मैंने काम किया यहाँ पे, दैट यू नीड टू डू, एंड इट इज लिटरली एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल गिव यू अ रियलिटी चेक. तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, एंड यू विल एक्चुअली लाइक वेक अप टू रियलिटी. बिकॉज अगर तुम अभी नहीं उठे तो तुम कभी नहीं उठोगे. लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, आई फील लाइक 3 months before board exams is the time you should actually get serious if you need to score like 95 above in your board exams. That's what I personally believe. मतलब अगर तुमने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा है, बट अगर तुम लास्ट के 3 months में सीरियस हो जाते हो, I am sure you can crack your board exams easily. But anyways, let's start and I'll show you this thing because it's very important and I will explain कि exactly क्या है. And अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, you need to make whatever the hell that is. So now let me just show you कि ये क्या है. Alright, so this is basically a list of everything which I need to complete in all of these topics to say that I've done the chapter. I don't think what I said right now made sense to any of you all, but let me show you. सबसे पहले social science का list है, then we have science, then we have maths. So इन सब lists में मैंने सारे chapters लिखे हुए हैं. So first of all, I have history के chapters जो board exam में आ रहे हैं, then geography के chapters जो board exam में आ रहे हैं, eco के chapters and civics के chapter. मेरा इस history में बहुत बुरा हाल है, as you can see. I want to do all of these topics again, इसलिए मैंने इनको like fill नहीं किया. But see, यहाँ पर I have written, I made columns. So अगर if I've completed one shot of that particular lecture, I will like color it like that. And अगर NCERT read कर ली अच्छे से, then I'll fill that column. If I've practiced PYQs correctly, then I'll fill that column, and so on and so forth. तो इसमें बेसिकली मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कॉलम्स बनाए हैं, लाइक द थिंग्स दैट आई थिंक आई नीड टू कंप्लीट टू से कि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. नाउ फॉर एग्जांपल, एसएससी में तुम कोई पर्टिकुलर बुक प्रैक्टिस करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल तुम ऑल इन वन करते हो, तो यू कैन मेक योर कॉलम्स लाइक सपोज तुमने वन शॉट देखा, देन यू रेड द एनसीईआरटी, देन यू प्रैक्टिस योर ऑल इन वन के क्वेश्चंस, देन यू मे बी रेड किसी और बुक के क्वेश्चंस. सो दैट इज व्हाई यू कैन कस्टमाइज दीज लाइक टेबल्स ऑन योर ओन अकॉर्डिंग टू तुम बेस्ड ऑन तुम कौन सी बुक करते हो. ओके, तो मैंने एसएससी का इस तरीके से बनाया हुआ है. नाउ लेट मी शो यू साइंस का एंड मैथ्स का. So for science, once again I have written all the chapters, and उसके बाद यहाँ पे columns है NCERT की back exercise, exemplar and उड़ान के questions. That means I have like this उड़ान question bank thing, उसके questions. And if I've done all of that, then I have this done column to check that in. And then for maths, NCERT, exemplar, ML Agarwal and RD Sharma. And सारे chapters मैंने लिखे हुए हैं इसमें भी. ओके, बट हियर इज द कैच. अगर हम लोग ये लिस्ट अभी बना रहे हैं, आई फील लाइक मेरे को ये लिस्ट सेशन की स्टार्टिंग में ही बना लेनी चाहिए थी, एंड दैट वुड हैव बीन बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बट मैंने ऐसा नहीं किया. बट तुम भी अगर अभी ये लिस्ट अभी बना रहे हो, लाइक 3 months बिफोर आवर बोर्ड एग्जाम्स, देन लाइक जब तुम ये कॉलम्स को फिल करोगे ना, यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड. सपोज तुम ऑलरेडी सारे लेक्चर्स का वन शॉट देख चुके हो, विच आई हैव वॉच्ड सारे लेक्चर का वन शॉट, बट आई हैव नॉट चेक्ड इन ऑल द बॉक्सेस. दैट इज बिकॉज जिन लेक्चर्स के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि येस मेरे को इन लेक्चर्स का वन शॉट वापस नहीं देखना है, मैंने उनके लिए कर दिया कलर कि ओके आई हैव वॉच दिस वन शॉट एंड आई डोंट नीड टू वॉच अनदर वन शॉट. ओके, इफ दैट मेक सेंस. बट अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसका वन शॉट मैंने पहले देखा था, लाइक 1 महीने पहले देखा था, बट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस लिस्ट, देन आई फील दैट आई डू नॉट नो दिस चैप्टर, आई डू नॉट रिमेंबर दिस चैप्टर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, और दैट आई नीड टू वॉच द वन शॉट वंस अगेन, देन आई विल नॉट कलर दैट बॉक्स एंड आई लीव इट ब्लैंक, सो दैट आई नो कि मेरे को इसमें और ज्यादा फोकस करना है. नाउ फॉर एग्जाम्पल तुम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर चुके हो,
एंड लाइक तुम्हारे मिड टर्म्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत गंदे मार्क्स आए, बट यू हैव प्रैक्टिस्ड द PYQs, यू हैव प्रैक्टिस द क्वेश्चन, बट क्योंकि तुम्हारे गंदे मार्क्स आए, यू नो यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, सो डू नॉट फिल इन दैट बॉक्स. लाइक यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ व्हेन यू आर फिलिंग इन दीज बॉक्सेस, बिकॉज अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो तो ये काम करने का कोई भी फायदा नहीं है. एंड ये काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस विल हेल्प अस रिवाइज इन द मंथ ऑफ नवंबर, बिकॉज यू विल नो एग्जैक्टली वॉट यू नीड टू प्रैक्टिस. बिकॉज जब तुम बुक के नाम लिख के कॉलम्स वगैरह बनाओगे, देन यू नो तुम्हें कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस करना है. एंड जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हाँ जी मुझे ये आता है, देन यू डोंट नीड टू डू दैट अगेन. ओके, नाउ हियर इज अनदर थिंग विच यू कैन डू टू सी तुम्हें क्या आता है एंड क्या नहीं आता है. सपोज तुम्हें मैथ्स के लिए बनाना है ये चीज, कुछ तो तुम्हें पता ही होगा चैप्टर, मुझे हाँ ये चैप्टर नहीं आता है एंड ये चैप्टर आता है. सम सेल्फ अवेयरनेस you probably have खुद से भी, but I recommend कि you practice like 1 or 2 sample papers maths के, like medium difficulty के, and based on that sample paper, like see, sample paper करना एक बात है, sample paper को analyze करना एक बात है. अगर if I solve a sample paper when I am checking the answer की I am focusing on मुझे कौन सा चैप्टर अभी फिलहाल कम आता है. सपोज I practice मेरे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, तो जब मैं लाइक चेक कर रही होती मेरे आंसर्स करेक्ट हैं या फिर नहीं, आई ऑल्सो ट्राई टू एनालाइज साइड बाय साइड मुझे कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं, सो दैट आई वर्क ऑन दोज टॉपिक्स. एंड जो टॉपिक्स मुझे आते हैं, यू डोंट नीड टू keep on repeating those topics because you already know those topics. तुम्हारे वो concepts already clear है, so you don't need to waste your time on those concepts if you're getting what I'm saying. So similarly, जब तुम like sample papers practice करते हो, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें कौन से topics नहीं आते हैं, तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा तुम्हारे कौन से concepts clear नहीं है, so that you can go back to the NCERT even to revise those concepts. Because बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स ही लैक कर रहे होते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इवन दो वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर सिलेबस. सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू. सबसे पहले ये चीज करनी है बिफोर यू डिसाइड योर 3-month स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड्स. सबसे पहले डू दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेरे को इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने ये पहले क्यों नहीं किया सेशन के स्टार्ट में, बिकॉज दैट वुड हैव बीन सो मच मोर कन्वीनियंट फॉर मी. बट इट इज फाइन, देर आए दुरुस्त आए, आई डोंट नो इफ यही कहावत होती है, बट yes, सबसे पहले हमें ये करना है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नवंबर में हमें क्या करना है? फॉर मी आई हैव माई प्री बोर्ड्स इन नवंबर एंड आई डोंट नो तुम लोगों के प्री बोर्ड्स कब हैं, बट ऑनेस्टली द फर्स्ट प्री बोर्ड विल लिटरली बी लाइक अ प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर मी, लाइक बिकॉज प्री बोर्ड में फुल सिलेबस आएगा, राइट? बट मेरा SST का पूरा सिलेबस अभी ढंग से नहीं हुआ है, एंड माई प्री बोर्ड्स आर इन लाइक 14 days. And I need to revise everything, not just SST, and I don't think I'll be able to do my syllabus to the full extent. But that does not mean कि मैं demotivate होके बैठ जाऊँ चुपचाप कि हाँ मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला है. No, it's like take the first pre-board as like a progress report. Give your 100%, but give it in a way that like you're चेकिंग कि हाँ अभी मेरी बोर्ड्स के लिए कितनी प्रिपरेशन है, मुझे अभी कितना आता है, मुझे अगले महीने कितना रगड़ना है. तुम्हें फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद ये समझ आ जाना चाहिए. डू नॉट टेक द फर्स्ट प्री बोर्ड लाइटली, डू नॉट टेक एनी प्री बोर्ड लाइटली. So yeah, basically take the first pre-board as your practice, as your progress report for your board exams. And first pre-board के बाद I'll upload another video about how you need to analyze your pre-board result to focus आगे के लिए. So subscribe for that. एनीवेज, नवंबर में हमें क्या करना है? नवंबर में हमें रिवीजन करनी है एंड जो टॉपिक्स नहीं है सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? नवंबर इज मेनली फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन. एंड रिवीजन हमें उन्हीं टॉपिक्स की करनी है जो हमें ढंग से नहीं आते हैं. जो ढंग से आते हैं उन्हें भी छोड़ दो, हो गया वो. जो ढंग से आता है लाइक जस्ट लीव दैट, डू दैट लाइक एग्जाम के कुछ दिनों पहले. फिलहाल वी नीड टू कंप्लीट आवर सिलेबस फॉर आवर प्री बोर्ड एग्जाम्स. दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज द राइट अप्रोच. क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा देन इट्स लाइक लाइक सिलेबस कंप्लीट करना भी फिलहाल इंपॉर्टेंट है, एंड वी कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रिवाइजिंग द टॉपिक्स दैट वी ऑलरेडी नो. दैट्स व्हाट दिस इज हियर फॉर. तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारा सिलेबस कहाँ लैग करता है, तुम्हें हर चैप्टर से क्या करना है. तो बेसिकली ट्राई कि तुम ये पूरा जैसे मैंने लाइक ग्रीन कलर से शेड किया, ट्राई कि पूरा तुम्हारा ग्रीन हो जाए. लाइक इफ यू आर टेकिंग इट, चेक, ट्राई नवंबर में एवरी सिंगल बॉक्स इज टिक्ड, राइट? सो माई गोल इज लाइक before my pre-boards, I need all of this to just be colored up and I need all of it to be green so that I feel a little confident about giving my pre-board exams, and that should also be your goal for the month of November. That's what we need to do for the month of November. And during your pre-boards, like before every pre-board exam, like during your preparation days, make sure कि तुम at least हर
सब्जेक्ट के 2 प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करके जाओ, एटलीस्ट 2, ओके, ताकि तुम्हारी दो हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिस हो जाए ड्यूरिंग द फर्स्ट प्री बोर्ड ओनली. देन आफ्टर द फर्स्ट प्री बोर्ड्स in December, first of all we need to analyze those pre-boards. For that I'll make a separate video after the pre-boards, right? And December में हमें क्या focus करना है? We need to focus on revision. November में हमने main focus क्या किया था? Syllabus completion. December में we need to mainly focus on revision. And what do we need to practice? We need to practice previous year questions. Now suppose तुम्हारे पास कोई book नहीं है practice करने के लिए, that is totally fine. You don't need a separate book to practice questions. I mean you do, but you can do that without any book as well. तुम Google पे जाओ, तुम search करो last 10 years board exam questions class 10th chapter name. Simple. You will get the questions, solve those questions. क्योंकि mostly क्या होता है, questions repeat ही होने वाले हैं last year वाले, right? Like maximum of the questions will be repeating only. So you need to practice those questions and practice your exemplar. Don't practice NCERT if you've already done it. And I expect कि तुम लोगों ने NCERT already कर रखी होगी. Yeah. So basically December में हमें थोड़ा बहुत perfection लाना है अपने pre-boards के लिए, I would say. And take this December wale pre-boards more seriously. That is not a progress report. That is literally like very very important, क्योंकि December वाले pre-boards के बाद boards will literally be a month away. So December वाले pre-boards को seriously लेना बहुत 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 ज़्यादा important है in my opinion. And yes, make sure तुम उन्हें पूरा अपना सीरियसनेस के साथ दो एंड लाइक प्रिटेंड कि दे आर लाइक योर फर्स्ट बोर्ड एग्जाम्स एंड गिव देम विद दैट माइंडसेट, ताकि तुम्हारी बोर्ड एग्जाम वाली प्रिपरेशन पूरी हो जाए दिसंबर तक, सो दैट जनवरी इज नॉट अ मंथ ऑफ प्रेशर एंड स्ट्रेस फॉर यू एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स आराम से, कामली, विदाउट रशिंग योर सिलेबस एंड एवरीथिंग. Okay, and now in the month of January we need to practice a lot of previous year papers, a lot, एटलीस्ट 10 प्रीवियस ईयर पेपर हर सब्जेक्ट के, लास्ट 10 ईयर्स के हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर तुम लगा लो. एंड एक्सेप्ट AI, बिकॉज आई थिंक AI में ज्यादा टाइम कोई स्पेंड नहीं करना चाहेगा, बट मैथ्स, साइंस, SST के लिए तुम एटलीस्ट लगा ही लो. एंड हर प्रीवियस ईयर पेपर के बाद वी नीड टू एनालाइज दैट प्रीवियस ईयर पेपर. एंड उसको एनालाइज करने का मतलब है तुम ये देखो तुम्हारे कौन से चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें तुम बार बार मिस्टेक कर रहे हो, एंड ये देखने के बाद गो बैक टू द NCERT एंड रिवाइज दैट टॉपिक. बट जब तुम लाइक सोचते ना कि हाँ आई नीड टू रिवाइज ऑल द सिलेबस, दैट इज नॉट मीन तुम वापस NCERT खोलोगे, वापस आराम से अपना पढ़ने बैठोगे हर एक टॉपिक. दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड कंसिडरिंग वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस, यू कैन नॉट रिवाइज इट लाइक दैट. दैट इज द वर्स्ट वे टू रिवाइज इट. Either you take a page, like यहाँ पे I have a notebook. Take a notebook or take like just an A4 sheet or anything and take a pen. पेपर है तुम्हारे पास, पेन है तुम्हारे पास. What do you need to do? Like अपनी NCERT साइड में खोलो. For example, you're revising SST, okay? I'll tell you how I revise SST, and I feel like इससे efficient method नहीं हो सकता है. अगर है, let me know. देखो, here is my geography की book, and suppose like ये चैप्टर मुझे रिवाइज करना है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है नहीं, बट सपोज मुझे ये चैप्टर रिवाइज करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमारा सब टॉपिक है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, एंड इसमें जैसे 1 2 3 4 पॉइंटर्स है, एंड देन दिस लाइक बेसिकली दिस इज द फर्स्ट सब टॉपिक व्हिच वी हैव इन दिस चैप्टर. What importance of industries? तो मैं कैसे रिवाइज करूंगी? मैं अपना पेपर लूंगी एंड आई विल राइट डाउन द कीवर्ड्स. Whatever I remember from that topic, I will write that down. Or if you don't want to do it on a piece of paper, अगर तुम्हें और ज्यादा कन्वीनियंटली करना है, just say it in your head. For example, मुझे क्या क्या याद आ रहा है इस टॉपिक से, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है. अगर क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क का, देन what all pointers will I write? Revise it like that. जैसे फर्स्ट पॉइंटर होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है वो, एंड इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी. Okay, I'm sorry I bored you with this, but the point is, this is how you revise. This is how I talk to myself when I'm revising. Okay, this is how I talk to myself. I'm like actively revising it. I'm speaking it out loud. If I feel like I cannot speak it out loud, like अगर मैं बहुत confident नहीं हूँ उस topic के लिए, then I'll get a page and I'll write it down. And वो लिखा जो तुमने लिखा हुआ है ना, लाइक गो बैक टू योर NCERT एंड चेक कि तुमने कौन से पॉइंटर्स मिस करे हैं. आफ्टर दैट मेमोराइज दोस पॉइंटर्स. Also guys, very 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 important, have all of your chemistry के reactions on one sheet of paper, have all of your physics के formulas on one sheet of paper, and अगर तुम्हारी maths अच्छी नहीं है, like अगर तुम्हें दिक्कत आती है formulas वगैरह like याद रखने में, have all of your maths के formulas on one sheet of paper and paste it in front of you. अब तो तुम कर ही लो ये काम. Honestly, I have not done it, but I have written all the formulas. I have not pasted it. I have written all the especially chemistry के reactions on in like my registers in one place only, ताकि मुझे कन्वीनियंट रहे एग्जाम के टाइम रिवाइज करना. बट अगर तुम अपने हाथ पे सामने ही चिपका देते हो तो तुम्हें लाइक
याद अपने आप, like passively you will keep memorizing it, especially the reactions, because 10th में भी काफी ज्यादा reactions है chemistry में. Like in every single chapter there are a bunch of reactions, so that is one way which you can revise that, and तुम्हें अलग से time नहीं लगाना पड़ेगा इसके लिए. History में and like SST में in general, if there are ऐसे topics जो memorize करने वाले हैं but तुम उन्हें याद नहीं कर पाते हो, write all of them in one place. जब वो सारी चीजें like फॉर एवरी चैप्टर मैं भी चीज करती हूँ, लाइक व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग फॉर माई एग्जाम्स, आई लाइक जैसे मेरे मिड टर्म हुए थे, तो मिड टर्म के टाइम जब भी मैंने कोई चैप्टर रिवाइज किया था, आई टुक एन A4 शीट एंड आई रोट चैप्टर का नाम एंड आई रोट सारी चीजें जो मेमोराइज करने वाली है ऑन दैट पीस ऑफ पेपर. एंड सुबह सुबह बस में आई हैड लाइक, जैसे हमारे पेपर में 9 चैप्टर आए थे SST के, आई हैड लाइक 9 A4 शीट्स एंड आई वाज जस्ट रिवाइजिंग द मेमोराइजिंग वाला पार्ट एक 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 शीट करके. एंड वो मेरा लाइक हमारा 40 to 45 मिनट्स का बस राइड होता है, तो वो मेरा 40 to 45 मिनट्स में 9 के 9 पेजेस पूरे रिवाइज हो गए थे. एंड मेरे को पेपर में मेमोराइजिंग वाला कोई भी इशू नहीं आया. एंड आई फील लाइक दिस हैक हैज वर्कड फॉर मी इन 9th ऑल्सो एंड इन 8th ऑल्सो. So like do try it out and let me know if it works out for you. So yeah, these are a few techniques which you can use to revise for your बोर्ड एग्जाम्स. क्योंकि हमें प्लेन बुक से रीड नहीं करना है, हमें अपने वन शॉट्स बार बार नहीं देखने हैं. लाइक अगर तुमने इस वाले जो तुमने ये शीट बनाया है, अगर तुम एक वन शॉट वाले लाइक चैप्टर के वन शॉट पे ग्रीन कलर कर चुके हो, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट विद इट. डोंट वॉच उसका वन शॉट अगेन. अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो देन डोंट फिल इट अप. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ व्हेन यू आर मेकिंग दैट, एज आई सेड, बिकॉज इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट देन ये बनाने का कोई भी फायदा नहीं है. Anyways guys, I really hope that you found this video helpful, and if you have any advices for me then let me know in the comments down below, because I am also giving my 10th board this year only. And I hope you enjoyed it. If you found it helpful, do subscribe to my channel and like this video, because that motivates me a lot. And that is pretty much it for this one. And don't forget to follow me on Instagram. मैंने starting में अपनी ID दिखाई थी. Love you always. Bye bye.